Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Okay, in let to do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video, we have completed the long question answer of the chapter Indian National Movement. Okay, and some homework I have given to you, which you complete in your classwork copy. Now, in today video, student, we will start a new chapter, that is chapter number 19, towards independence. Towards independence. So, what are the learning objective of this chapter, student? The learning objective of this chapter means what you will understand after studying this chapter is that role of Mahatma Gandhi ji, and second, events that took place from 1920. Okay, so now see student, let's discuss about the role of Mahatma Gandhi. The role of Mahatma Gandhi. In 1915, Gandhi ji returned from South Africa. Africa. So, let student discuss the role of Mahatma Gandhi. Okay, so in 1950, Gandhi ji returned from South Africa to India. So, when Gandhi ji returned to India, so he was also a freedom fighter. He also fight for he also struggle for the independence of our country, that is India. So when Gandhi ji returned from South Africa, he directly joined the political party. So answer is student no. Okay, when Gandhi ji returned back to India from South Africa, he directly do not join the political party. First of all, Gandhi ji traveled all over the country. So, what is the reason for that? First of all, what the Gandhi ji do? First thing is that Gandhi ji traveled Gandhi ji traveled all over the country. So when Gandhi ji returned back from South Africa, Gandhi ji traveled all over the country. And what is the reason for that? Reason is that Gandhi ji thought that by traveling the whole country, it will give good understanding
about the problems which are facing by the people of India in all parts of the country by the British government. Is it clear? What was the reason of Gandhiji to travel all over country? The reason is that student, he want to understand the problems which the people in all part of the country are facing among the facing at the time of British government. Okay, now, but the most important thing is that Gandhiji was shocked to see the condition of the poor people. Why he was shocked? Because see students, Gandhiji shocked with the कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल. जब उन्होंने पूरी कंट्री में ट्रेवल किया ना बेटा, तो उन्होंने देखा जो पुअर पीपल्स हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब है. और उन्होंने ही रियलाइज वन मोर थिंग. देखो, एक तो हमारी कंट्री क्या है में इंडिपेंडेंस उस समय नहीं मिली थी, ठीक है. एट प्रेजेंट टाइम द गवर्नमेंट इज ऑफ द ब्रिटिश पीपल rule our country. So due to their rules and laws people are suffering. Okay, एक रीजन तो ये था कि ब्रिटिश रूल में और उनके लॉस में people of India are suffering, especially poor people. And he find one more reason कि ब्रिटिश लोगों की वजह से तो पीपल और स्पेशली पुअर पीपल बहुत सफर कर रहे हैं, लेकिन देर इज आल्सो सम सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी ड्यू टू विच द पुअर पीपल आर सफरिंग. दैट इज द कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस डिफरेंसेस. क्योंकि हमारी कंट्री में सारे रिलीजन्स के लोग थे. ओके, उन्होंने देखा कि ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा है, ब्रिटिश ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स बना रखे हैं, तो इंडियंस बहुत सफर कर रहे हैं. चलो, दैट इज अ राइट, बट ही वाज शॉक्ड दैट देयर इज अनदर रीजन आल्सो व्हाई द पीपल आर suffering, and that reason is the social evils of the society, like caste system and religious differences, and people drink alcohol also. ठीक है, बहुत से लोग उस समय बहुत नशा करते थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे ब्रिटिश रूल के समय. तो these are the social evils of the society. So Gandhiji decided to fight against the British and also against the social evils of the society also. Is it clear? तो ये सारी चीजें गांधी जी ने रियलाइज की, ठीक है, कि देखो ये बहुत अच्छा डिसीजन था बेटा, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो. हम कह रहे थे कि ब्रिटिश पीपल्स के रूल रेगुलेशन से पूरी कंट्री में every part of the people of India, they are suffering due to the British rule. हमने इसी चीज पे फोकस किया था. बट गांधी जी ने ये चीज पे भी फोकस किया कि ब्रिटिश रूल से तो सफरिंग हो ही रही है, और इसका सबसे बड़ा अगला रीजन क्या है? सोशल इविल्स ऑफ द सोसाइटी, कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस डिफरेंसेस. बिकॉज स्टूडेंट, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, ठीक है. सो एंड इफ वी ही रियलाइज दैट कि अगर हमें ब्रिटिश लोगों से फ्रीडम चाहिए, ठीक है, जो मैंने चैप्टर नंबर शायद 17 या 18 में भी डिस्कस किया था कि व्हाट ही से उन्होंने ये लोगों में रियलाइज कराना स्टार्ट किया. नेशनलिज्म उन्होंने डाली लोगों में, क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल रीजन्स.
ओके, सो पीपल्स आर फाइटिंग फॉर देयर रीजन। वेस्ट में अलग लड़ाई चल रही थी, ईस्ट के लोग अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, साउथ वाले अपने एरिया के लिए लगे थे, नॉर्थ वाले अपने के लिए लगे थे। तो एक नेशनलिज्म की जो एक जो होती है ना, वो जो नेशनलिज्म कंट्री के लिए, ही वांट टू मोटिवेट द पीपल फॉर दैट, वो इस चीज के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे कि फॉरगेट दैट वेदर यू बिलोंग टू एनी कास्ट, वेदर यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, जस्ट थिंक इट दैट यू आर इंडियंस। क्योंकि जब तक आप डिवाइड रहोगे आपस में, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, आप में यूनिटी ही नहीं होगी, सो यू कांट गेट द इंडिपेंडेंस। ओके, सो फ्रॉम हियर he want to motivate the people of India that they unite together, they stand together, then only they get the freedom from the British rule. Okay, so this is about the role of महात्मा गांधी जी का थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अब यहाँ के हम डिस्कस करेंगे जो 1919 में हुआ, दैट इज अ जलियांवाला मास्कर एंड इट इज इन अमृतसर। ठीक है, अमृतसर जो बच्चे, बहुत से बच्चे हैं जिनकी पापा लोग की पोस्टिंग भी आती है अमृतसर, तो बहुत, और या तो आप लोग अपने समर वेकेशन में कभी घूमने जाते हो तो आप सबने गोल्डन टेम्पल देखा होगा। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू सिख रिलीजन, जो पीपल सिख रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, और इस गोल्डन टेम्पल के बगल में ही जलियांवाला बाग है। ठीक है, अगर आप अमृतसर गए होगे तो बहुत से बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, सो अब देखो व्हाट हैपन इन 1919। So in 1919 the British passed Ralt Act। ठीक है, सो व्हाट हैपन इन 1915 1918 के बाद 1919 में जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, प्रीवियस चैप्टर में मैंने थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था कि मैनी इंडियन सोल्जर्स आर फाइटेड विच हु आर इन द ब्रिटिश आर्मी। इंडिया के सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में थे बहुत से, उन्हें वो लोग ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे आल्सो फाइट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, वो लोग भी ब्रिटिश साइड से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने भी लड़ाई की थी। ठीक है, इस होप में कि मे बी द ब्रिटिश पीपल बिकम हैप्पी, और कुछ या तो अपने जो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन कर दें, हो सकता है ब्रिटिश लोग, या तो वो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कर दें। ठीक है, इंडिपेंडेंस दे दें, हमारी कंट्री को आज़ादी मिल जाए। ठीक है, लेकिन व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाउ द ब्रिटिश पास इन 1990 द रॉल्ट एक्ट, अब इन्होंने पास आउट कर दिया। ठीक है, सो बिकॉज ब्रिटिश ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, कोई रूल्स और लॉस में चेंजेस नहीं आई, सो पीपल्स बिकम वेरी एंग्री। सो टू कंट्रोल द पीपल व्हाट दे डू, they pass Ralt Act in 1919, and what is the meaning of this Ralt Act? It means that not more than 5 people can gather on a place। ठीक है, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे
नहीं खड़े हो सकते थे। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें जेलों में डाल दिया जाएगा, इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि एट दैट टाइम पीपल्स आर, जो इंडियंस पीपल थे वो धीरे धीरे ब्रिटिश पीपल के काफ़ी अगेंस्ट होते चले जा रहे थे। सो नाउ व्हाट दे डू, दे, दैट इज द रीजन दे पास द रोल एक्ट टू कंट्रोल द पीपल ऑफ इंडिया। अब पीपल आपस में, क्योंकि अब धीरे धीरे देखो लोगों में सब जान गए थे कि ब्रिटिश जो है, अब अगर हम यूनाइटेड हो जाएं तो हम लोग ब्रिटिश लोगों से अपने ब्रिटिश लोगों से स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। अब इन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक मीटिंग्स थी, जो लीडर्स लोग लेते थे अपने लोगों को मोटिवेट करते थे, इन्होंने अब देखा कि दे आर प्लानिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जहां भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लान होते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी होती थी, तो ये उन लोगों को पकड़ के जेलों में डालने लगे। ठीक है, तो उन लोगों को पकड़ पकड़ करके इन्होंने क्या किया, जेलों में डालना स्टार्ट कर दिया, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज में कुछ भी एक्टिविटीज हो रही थी उस समय। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन 1919 13 अप्रैल, द डे इज 13 अप्रैल, और ये वैसाखी वाला दिन था। ठीक है, जब फसलें होती है ना बेटा, फार्मर्स लोग क्रॉप्स लगाते हैं और फसलें पक जाती हैं, तो उसकी खुशी में दे सेलिब्रेट द festivals, okay, and this festival is known as Baisakhi festival, okay. So in other state all the farmers celebrate this festival by different name, अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से इस फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। जैसे पंजाब में बैसाखी बोलते हैं, अगर आप लोग नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो जहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे जब फसलें रेडी हो जाती हैं, सो आफ्टर वी सेलिब्रेट these types of a festival. So it is 13th April 1919 and it is the festival of Baisakhi, and at that time many people from different parts of the country also come to Amritsar. ठीक है, क्योंकि बैसाखी का समय था, फेयर लगती, मेले लगते, तो बहुत अदर पार्ट्स कंट्री के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और एट दैट टाइम रॉल टैक्ट लगा हुआ था। ठीक है, सो हिंदूज भी थे उसमें, मुस्लिम्स भी थे, सिख लोग भी थे। तो लोगों ने सोचा कि फेस्टिवल है तो मे बी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। ठीक है, क्योंकि उस समय रॉल टैक्ट लगा हुआ था और ऐसा उन्हें लगा कि इट्स द टाइम ऑफ ए फेस्टिवल एज द फेस्टिवल ऑफ वैसाखी, सो मे बी द ब्रिटिश पीपल विल नॉट टेक एनी एक्शन। सो मैनी पीपल्स गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, कहाँ, जलियांवाला बाग में। ठीक है, मैनी पीपल गैदर्स ऑन 13 अप्रैल 1919 फॉर द पब्लिक मीटिंग। ठीक है, वहां पब्लिक मीटिंग चल रही थी लोगों में, तो धीरे धीरे करते करते बहुत से हजारों में लोग गैदर्ड हो गए। अब ऐसा नहीं है कि ओनली द मैन मेल्स आर देयर, सो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप आर प्रेजेंट इन द जलियांवाला बाग। उसमें ओल्ड लोग भी थे, यंग मैन्स भी थे, वुमेन्स भी थी, इवन स्मॉल किड्स भी थे। ठीक है, सो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप दे गैदर्ड फॉर द पब्लिक मीटिंग इन द जलियांवाला बाग। सो when someone, because there are at that time there are many informers also, so someone informed to the British officer General Dyer about this public meeting which is held in Jallianwala Bagh, okay, on April 13 1919. So now to stop this meeting, as we know that at that time there is a law which is passed by the British government, that is the Rowlatt Act. Not more than 5 people can gather at any place. Now when they hear about the meeting, public meeting, and when General Dyer
came to know that thousands of people gathered together in the Jallianwala Bagh. Then okay, we will discuss this in the next video. Thank you, student.